अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। अजीम तर हैदराबाद में गणेश विसर्जन जुलूस का बड़े जोश और खरोश के साथ आगाज हुआ। बालापुर से मरकजी जुलूस ठीक 11 बजे शुरू होकर हुसैन सागर के लिए रवां दवा हो गया और रास्ते में सैकड़ों छोटे छोटे जुलूस इस मरकजी जुलूस में शामिल होते चले गए। इब्तिदा में जुलूस में शामिल गणेश मंडियों की तादाद कम थी, लेकिन 2 बजे के करीब जब जुलूस शाली बंडे के करीब पहुंच गया था, गणेश मंडलियों और आवाम की तादाद में जबरदस्त इजाफा होता चला गया। शाम देर गए तक ये जुलूस चार मीनार को पार करके अफजलगंज की तरफ बढ़ गया था। वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने चार मीनार के इलाके का दौरा करके इंतजाम का जायजा लिया। साउथ जोन के हमारे रिपोर्टर सिराज से बातचीत करते हुए वजीर मौसूफ ने बताया कि गणेश मंडियों के ऑर्गेनाइजर्स और आवाम के ताबून से जुलूस पुरअमन पर गुजर जाएगा। सिटी पुलिस ने कमिश्नर अंजनी कुमार की निगरानी में जबरदस्त सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं। 21,000 से ज्यादा पुलिस फोर्स की खिदमत हासिल की गई है। कमिश्नर पुलिस खुद चार मीनार के पास कई आलादारों के साथ मौजूद थे। सेंट्रल जोन के रिपोर्टर मोहम्मद नईम ने बताया कि कमिश्नर पुलिस ने आज सुबह की इब्तदाई औकात में बशीरबाग में कायम पुलिस कंट्रोल कमांड पर कुछ देर गुजारे और मातहत अहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। वेस्ट जोन के रिपोर्टर शहबाज बाबा ने जो हुसैन सागर से नमरजन की रिपोर्टिंग कर रहे हैं बताया कि JSMC और R&B ने नमरजन के लिए गैर मामूली इंतजाम किए हैं। उन्होंने मजीद बताया कि विसर्जन का सिलसिला रात भर और कल दोपहर तक जारी रहने का इम्कान है। ఉదయం హైదరాబాద్ సిటీలో అన్ని నిమజ్జనం ప్లేస్లో నిమజ్జనం ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. మార్నింగ్ 7 o'clock పూజా తర్వాత బడా గణేష్ ఖైరతాబాద్ ప్రొసెషన్ కూడా స్టార్ట్ అయింది. బై 10:15 తెలుగు తల్లి క్రాస్ కూడా జరిగింది. తర్వాత వేరే జోన్స్లో ప్రొసెషన్స్ గణేష్ ఐడల్స్ మూవ్మెంట్ కూడా జరుగుతుంది. ట్రాఫిక్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుంచి బ్యారికేడింగ్స్, డైవర్షన్స్, సైనేజెస్ ఇవన్నీ పబ్లిక్ కన్వీనియన్స్ కోసం ఇది కూడా అన్నీ ఆన్ ప్లేస్ ఉంది. తర్వాత ఈ మన కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ రూమ్లో ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఇంక్లూడింగ్ GHMC, మెట్రో వాటర్ వర్క్స్, ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్, ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్, R&B, ఆల్ డిపార్ట్మెంట్ సీనియర్ ఆఫీసర్స్ ఫర్ బెటర్ కోఆర్డినేషన్స్ మార్నింగ్ నుంచి ఇక్కడ ఉన్నారు. సీనియర్ ఆఫీసర్స్ సెక్టర్ వైజ్ ఎవ్రీ ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్లో DCP ర్యాంక్, జాయింట్ CP ర్యాంక్, అడిషనల్ CP ర్యాంక్ అందరు ఆఫీసర్స్ ఫీల్డ్లో ఉన్నారు. నేను కూడా ఒక రౌండ్ చూసిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చాము. మళ్ళీ అగైన్ వీ విల్ గో అండ్ హ్యావ్ ఇన్స్పెక్షన్ అట్ ఆల్ ద ప్లేసెస్. టెక్నాలజీ తరఫు నుంచి ప్రతి ఇంపార్టెంట్ ఐడల్స్కి 20 ఇంపార్టెంట్ ఐడల్స్కి మూవ్మెంట్, మినిట్ టు మినిట్ మూవ్మెంట్ మన IT సెల్ ద్వారా డెవలప్డ్ ఒక IT అప్లికేషన్లో ఇక్కడ సెపరేట్ స్క్రీన్ ఉంది. నేను మీ అందరికీ చెప్తున్నాము, ఇది కూడా తీసుకోండి. తర్వాత బ్లూ కోల్ట్ మూవ్మెంట్, పెట్రోల్ కార్ మూవ్మెంట్ యాజ్ పర్ రిక్వైర్మెంట్ దట్ ఇది కూడా జరుగుతుంది. బయట నుంచి చాలామంది సీనియర్ ఆఫీసర్స్ కూడా వచ్చారు. ఫోర్సెస్ కూడా మన DGP గారు తెలంగాణ స్టేట్ వేరే డిస్ట్రిక్ట్స్ నుంచి ఫోర్స్ కూడా ఇచ్చారు. దెన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఆల్సో గివెన్ ఫోర్సెస్. సెంట్రల్ ఫోర్స్ లైక్ ర్యాపిడ్ యాక్షన్ ఫోర్స్, రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్, ఆల్ ఆర్ డిప్లాయిడ్. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ స్మూత్లీ అండ్ విత్ ఫుల్ పబ్లిక్ కోఆపరేషన్ థింగ్స్ విల్ గో ఆన్ ఫైన్. థ్యాంక్ యూ. ఖైరతాబాద్ గణేష్ మాత్రమే ఇప్పుడు ప్రొసెషన్ జరుగుతుంది, మిగతా గణేష్లన్నీ ఇప్పుడు ఇంకా స్టార్ట్ కానటం, వాటి మూవ్మెంట్ ఎలా ఉండబోతుంది? మన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం 200 పైన ఐడల్స్కి మూవ్మెంట్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది. తర్వాత రాచకొండ సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ తరఫు నుంచి కూడా అబౌట్ 150 ఐడల్స్కి మూవ్మెంట్ జరుగుతుంది. అనదర్ హాఫ్ అన్ అవర్ టు 45 minutes దే విల్ ఎంటర్ ది జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్. బాలాపూర్లో ఆక్షన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. ఇట్ విల్ బి కంప్లీట్ అండ్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ షార్ట్లీ. हैदराबाद के बालापुर का मशहूर लड्डू का आज 17,60,000 रुपए में हर्राज हुआ। यह कीमत गुज़श्ता साल के मुकाबले में 1 लाख रुपए जायद बताई गई है। एक मुकामी किसान के राम रेड्डी ने सबसे ज्यादा बोली लगाकर यह लड्डू हासिल किया है। पहली मरतबा लड्डू के हर्राज में आंध्र प्रदेश के जिले नेल्लूर से भी बोली लगाने के लिए लोग आए हुए थे। कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज बरखी की बिलाखलल सरबराही को यकीनी बनाने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उनके हमरा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद जाफर और दूसरे अहदेदार भी थे।
टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। खैरताबाद की मशहूर और 61 फीट ऊंची गणेश मूर्ति का आज दोपहर हुसैन सागर में निमज्जन कर दिया गया। शोभा यात्रा निकालने से पहले ही हजारों लोग खैरताबाद पर जमा हो गए थे और यह जुलूस फिर लगड़ी का पुल और दूसरे इलाकों से होता हुआ नेकलेस रोड पहुंचा, जहां हजारों लोगों ने इस जुलूस का खैरमकदम किया। मजहबी नारों की गूंज में इसका विसर्जन अमल में आया। इस वक्त तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों से छोटी छोटी गणेश मूर्तियां भी पहुंचने लगी थी।
पुलिस गांधीनगर ने गणेश विसर्जन के इंतजाम के सिलसिले में तैनात एक सब इंस्पेक्टर के साथ गाली गलौज करने और उनके काम में मदाखलत करने पर शिवशंकर, विनय कुमार, अजय कुमार और दूसरों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक चिकड़पल्ली से वाबिस्ता सब इंस्पेक्टर जी बालराज टैंक बंड पर ड्यूटी अंजाम दे रहा था। उसने वहां एक ट्रैक्टर को हटाने की हिदायत दी, जिसके बाद ये नौजवान सब इंस्पेक्टर से उलझ गए और फिर गाली गलौज की। తాగి మాట్లాడుతున్నారు ఏం టైం అవుతుంది మమ్మల్ని చెక్ చేయాలి మీరు ఆయన తాగినాడు మమ్మల్ని అంటూ మళ్ళీ ఉంటా మళ్ళా ఏం మాట్లాడుతున్నా ఆయన కూడా మాట్లాడికి లంచ్ కూడా డ్యూటీలో ఆయన తాగున్నాడు డ్యూటీలో ఆయన తాగున్నాడు ఒకసారి డంకంటే అదే అదే ప్రీతి చేపిస్తాం మీరు అరే నువ్వు రాను మీరేం చేస్తారు సార్? జీ బాలరాజు సార్ మేమెంత గర్మీ ఏంటో ఏమి ఏడుకోవాలి अरे सर वो 10 साल आते हैं रीडिंग टेस्ट करेंगे सर तप्पी మా కుట్టిలా చెప్పు అది అది కూడా తీసాం కాజాతా జీ బాలరాజు आंधे जीप आंधे पीछे मांगे अरे मुंगल ओढ़ रही है कौन अरे मिला रो मीडिया को बुलाओ रे भाई बुलेट मेरी డ్యూటీ ఏడుంది తాగుంటే లంచ్ ఓడికి అంటావా చెక్ చేసినావా మమ్మల్ని తీసుకోవద్దు మీకు అర్థమైతే లేదు పోదాం పోదాం ఏడికైతే ఆడికి మీ తాగింది అర్థమవుతలే బాల్ హేరా అరే పోలీసు వాళ్ళు చక్కగా ఉంటాయి అందరు చక్కగా ఉంటారు సార్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి కాదు మీరు చక్కగా ఉంటే చక్కగా అవుతాయి సార్ ఏమంటారా సార్ ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి సార్ అని మర్యాద ఇస్తున్నా మీకు
కొంచెం ఆపురమ్మా బయోగ్లాస్ ఆపన్నది అయిపోతుంది హెవీ ట్రాఫిక్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడు వదిలేస్తే మళ్ళీ ఓడి వీడేస్తాయా వీడు సరే అయిపోయింది వస్తారంట 10 సార్లు ప్రెస్ వాళ్ళు వస్తారంట ఒకసారి ఏమవుతావు మూతిలో मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के शोबे फासलाती निज़ाम ने उसके मुख्तलिफ प्रोग्रामों में दाखिलों की तारीख को 30 सितंबर तक तोसी दे दी है। डायरेक्टर डिस्टेंस एजुकेशन प्रोफेसर PF रहमान ने बताया कि मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में सैलाब की सूरत हाल और मानसून के सबब कई तलबा जुलाई से शुरू करदा तालीमी साल में दाखिले नहीं ले सके, चुनांचे उनकी सहूलत के लिए दाखिलों की तारीख में तोसी की गई है। नवाही इलाके डंडीगल में वाक़ एयरफोर्स एकेडमी में एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसरों के तरबियती मरकज़ पर कल ग्रेजुएशन की तकरीब मुनक़्क़िद हुई। एयर मार्शल AS बटूला ने 3 माह की तरबियत हासिल करने वाले उम्मीदवारों में असनादात तकसीम किए। हैदराबाद में अमरीकी कौंसल जनरल जोएल रेफमैन ने कल रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव से मुलाकात की। कौंसल खाने के ज़राए ने बताया कि ये खैर सुगाली मुलाकात थी। उनके हमरा चीफ काउंसलर एरिक एलेक्जेंडर, माशी उमूर के निगरान क्रिस्टन लोहेर और सियासी उमूर की निगरान श्री माली भी थी। बातचीत के दौरान KT रामाराव ने अमरीकी तिजारती घरानों से हैदराबाद के देरीना ताल्लुकात का तस्करा किया और कहा कि रियासत में मजीद सरमाकारी के मौके फराहम किए जाएंगे। वजीर रोड एंड बिल्डिंग्स B प्रशांत रेड्डी और वजीर बहबूदी खवातीन व अतफाल सत्यावती राठौर भी मौजूद थी। नारायणपेट में एक दिलचस्प वाक़े में जिला इंतजामिया ने बकरियों का पालन करने वाले एक शख्स को 10,000 रुपये का जुर्माना कर दिया क्योंकि उसकी बकरियां हरिता हरम के तहत लगाए गए पौधों को खा गईं। जिला कलेक्टर वेंकट राव जो मक्तल से गुजर रहे थे बकरियों को पौधे खाते हुए देख लिया। उन्होंने फौरी मुतालिका मंडल ऑफिसर को इसकी इत्तला दी, जिन्होंने वहां पहुंचकर बकरियों को अपनी तहवील में ले लिया। MPDO पवानी और MRO श्रीनिवासलू ने बकरियों के मालिक शिव कुमार का पता चलाकर उसे 10,000 रुपये का जुर्माना फाड़ दिया। झारखंड में आने वाले असेंबली इंतखाबात को मलूज रखते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज रांची में किसानों के लिए अनोखी स्कीम प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना का आगाज कर दिया। उन्होंने रांची में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी किया और संगे बुनियाद रखने की तकरीब के बाद एक जलसे आम से भी खिताब किया। आपके झारखंड की नई पहचान बनने जा रही है कि ये वो राज्य है जो गरीब और जनजातीय समुदाय के हितों की बड़ी योजनाओं का एक प्रकार से लॉन्चिंग पैड है। यानी जब देश में इस बात की चर्चा होगी कि गरीबों से जुड़ी बड़ी योजनाएं किस राज्य से शुरू हुई तो उसमें झारखंड का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आएगा। यही झारखंड से दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत की शुरुआत हुई और आज देश के लाखों लोग जो पैसों के अभाव में इलाज नहीं करवा पाते थे उनका इलाज हुआ है। वो आशीर्वाद बरसा रहे हैं, वो आशीर्वाद झारखंड को भी पहुंच रहे हैं। आज पूरे देश के करोड़ों किसानों को पेंशन सुनिश्चित करने वाली प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
इसकी शुरुआत इस झारखंड की बिरसा मुंडा की धरती से इसका प्रारंभ हो रहा है। इतना ही नहीं, देश के करोड़ों व्यापारियों और स्वरोजगारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना की शुरुआत भी झारखंड से हो रही है। मैं इस महान धरती से देश भर के किसानों और व्यापारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। यानी हमने कभी देश के असंगठित कामदारों को पेंशन की योजना दी, बाद में किसानों के लिए पेंशन योजना, उसके बाद व्यापारी और स्वरोजगारी के लिए पेंशन की योजना। एक प्रकार से देश को बनाने में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका है, ऐसे समाज के सभी वर्गों को बुढ़ापे में मुसीबत में जीना न पड़े, उसकी गारंटी ये पेंशन योजना लेकर के आई। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने मुल्क की अबतर मैशत पर गहरी तशवीश का इजहार किया और बीजेपी पर उसे हासिल खत एतमाद को खतरनाक अंदाज में इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद किया। सोनिया गांधी एआईसीसी के हेडक्वार्टर्स पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदूर और कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के कायदीन के इजलास से खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत कांग्रेस के सब्र का इम्तिहान ले रही है, लेकिन कांग्रेस एहतजाजी एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए आवाम के सामने बीजेपी को बेनकाब करेगी। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत में जमहूरियत डामाडोल हो चुकी है और वो आवाम के खत एतमाद का बेजा इस्तेमाल करने को अपना वतीरा बना लिया है। पार्टी ने इस इजलास में महात्मा गांधी की 150वीं यौम पैदाइश तकारीब के मंसूबों को भी खतियत दे दी। साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह इस इजलास में शरीक थे, जबकि साबिक पार्टी सदर राहुल गांधी इजलास में नजर नहीं आए। सोनिया गांधी ने कहा कि हुकूमत इंतखामी सियासत में मुलविस है, जिसकी माजी में कोई नजीर नहीं मिलती। उसका मकसद माशी महाज पर हुकूमत की नाकामियों की पर्दापोशी है। बीजेपी महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नामों का इस्तेमाल करते हुए उनके हकीकी पैगाम को नफरत पर मबनी एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने कहा कि मुल्क एक माशी बहरान से दोचार है और उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अंदाजा नहीं कर रही है कि रोजगार के शोबे की हालत किस कदर खराब हो चुकी है। चीफ मिनिस्टर पंजाब अमरिंदर सिंह, चीफ मिनिस्टर राजस्थान अशोक गहलोत, पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर वी नारायण स्वामी भी इजलास में मौजूद थे। Respected Sonia ji, respected Anthony ji, Venugopal ji, Ghulam Nabi ji, members of the working committee, presidents of the state congress unit, and distinguished ladies and gentlemen. I have been asked to speak to you on the economic situation in the country, and let me begin by saying that the country is today in the midst of a dangerously protracted slowdown. And this is something which is not a statement being made only by the Congress party people, but everywhere, whether you talk to people in industry or you talk to journalists, the common theme is that the economy is going from bad to worse. And the dangerous thing about the present situation is that the government is complacent enough not to realize that we are in the midst of a protracted economic slowdown. For the first quarter of 1919 to 20, the national income growth rate has declined to 5%. 5 quarters proved successive downgrading. And this reminds me of the situation that prevailed in 2008 when our government was in power. Because of international financial crisis, we faced a very challenging situation, and
we faced that situation head on, and we converted that crisis into an opportunity to revitalize our economy. And in the situation that our country is faced today, whether you look at agriculture, whether you look at real estate, whether you look at manufacturing, all along the line there is downturn in the economy. And if this situation is not reversed, the worst thing would happen on the employment situation. If income growth slows down month after month, quarter after quarter, the scope for creating more jobs for our young people is going to be very seriously affected. I mentioned that the growth rate has declined for 5 successive quarters, and now it stands at 5%. The Congress Party, I had issued a statement summing up what's going wrong, and I can only repeat those things, that agriculture is the cornerstone of economic activity in our country. 60% of our people live in agriculture and allied activity areas, and the latest figures of the growth rate of agriculture is 2.7% as against previous year of over 3.5%. And the dangerous point is that the real wage rate in agricultural sector, in rural sectors, have been static for the last 5 years of the जम्मू के पौंछ जिले के मरीजों और मकामी अवाम ने सेहत की सहूलतों जैसे ब्लड बैंक और डिजिटल एक्सरे फराहम करने पर हुकूमत और महकमा सेहत से इज़हार तशक्कुर किया है। राजा सखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये सहूलतें पहले कभी नहीं थी। पहले डॉक्टर्स मरीजों को जम्मू के दवाखानों को जाने का मशवरा दिया करते थे। एक मकामी शहरी ने कहा कि अब चूंकि दफा 370 बर्खास्त हो गया है, हुकूमत जिले में मजीद हेल्थ सेंटर कायम कर सकती है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टरों और स्टाफ की तैनाती के जरिए आवाम की बेहतर खिदमत की जा रही है। ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट और जिले के नोडल ऑफिसर डॉक्टर मंजीत सिंह ने बताया कि जिले में दवाखानों की हालत में सुधार आ रहा है। माहिर फिजिशियन और सर्जन पर मुश्तमिल एक डिजास्टर टीम तैयार की गई है ताकि इमरजेंसी हालात से निपटा जा सके। वज़ीर नरेंद्र मोदी की सोच अभियान स्कीम के मुताबिकत में दवाखाने में साफ सफाई का भी माकूल इंतजाम है। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि मुल्क में पहला NBA खेल आइंदा माह बम्बई में मुनक़िद होगा। NBA इंडिया गेम्स में सैक्रामेंटो किंग्स और इंडियाना पेसर्स के दरमियान 4 और 5 अक्टूबर को SVP स्टेडियम में मुकाबला होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।